Hi guys, welcome to the next video in this daily Day practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now we have a very calculative set here, right? A lot of you said to involve calculative sets. So here we go. Let's read this set and then we'll figure out the values, right? Now, the table given below depicts the partial information about the electric power consumption in units by 6 home appliances, air conditioners, AC, fans, bulbs, washing machines, refrigerator and TV used by 5 families F1 to F5 in a particular month. So, क्या data है basically? This is very clear from the first paragraph of this. So, there are 5 families F1 to F5 and the power consumption, that is in units, it is given for 5 appliances, 6 appliances for these 6 families: ACs, fans, bulb, washing machine, refrigerator and TV. So these numbers are actually the units of electricity consumed. Some values are obviously missing. All the values in the table must be integral values only. So remaining values are also integers. There are no fraction values involved. Total power consumption by these families altogether for that month was 10,000 units. So everything adds up to 10,000. Power consumption by any family is represented by P of F, right? That is the way they are going to represent this. So P of F1, so F1 ka total to P of F2 ka total. This total is actually in the ratio 2:3. So this ratio is given for F2 F3 as well, F3 F4 as well, F4 F5 as well. So पहला thought तो यहीं पे दिख गया, ratio combine कर देंगे. So I'll get the total ratio of the totals of each of the 5 families, and because मेरे को total 10,000 पता भी है, so I can go ahead and simply figure out the actual total for each of these 5 families, right? Row का sum आ जाएगा, right? So let's start with that itself. So सबसे पहले F1 F2, let's write this down. F1 F2 F3 F4 F5, right? F1 F2 का रेशो 2:3, F2 F3 का रेशो F2 F3 का रेशो 54:47, F3 F4 का रेशो 235:163, and finally F4 and F5 में same number है. I'll write this down. तो F4 and F5 में 163 to 152 का ही रेशो है. So ये तो ऑलरेडी कंबाइंड है. F3 को सेम बना देते हैं. 47 into 5 is 235, right? 5. तो 54 into 5 भी हो जाएगा यहाँ पे. 54 into 5, 5 into 50 is 250 and 4 into 5 20, 270 हो गया. एंड 3 and 2, तो ये नंबर बना सकते हैं एक्चुअल वाला. तो 3 से 270, दैट इज 90 टाइम्स. सो 90 into 2 is 180, राइट? सो 180 प्लस 270 प्लस 235 प्लस 163 प्लस 152, यही हमारा एक्चुअली में इनका रेशो बन गया. नाउ अगर आप इन सबको ऐड करके देखो, 3 2 5 5 5 10 0 1 5 6 6 6 12 12 and 3 15 15 and 15, 8 and 7 is 15, 15 and 15 is 30, 0 3 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1000 आ रहा है. क्या सिग्निफाई करता है ये कि अगर मैं यही नंबर्स रखता तो इन सबका टोटल आपका कितना आता? 1000 आता. बट आना कितना चाहिए आपका? 10,000. द टोटल पावर कंजम्पशन बाई ऑल दीज 5 फैमिलीज वॉज 10,000. सो 10,000 बनाने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं? आई विल ऐड 1 0 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स. आई विल मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स बाई 10. दैट मीन्स नाउ वी हैव आवर फर्स्ट concrete information that the total of these 5 families has been figured out. This is 1800, this is 2700, this is 2350, this is 1630 and this is 1520. ये आ गया आपका total for each of these 5 families. I'll just remove this now. Now let's proceed further. So this part is actually done, this part is also done. Next, power consumed by AC, fan, bulb, washing machine, refrigerator and TV for all the 5 families together was 4398, 2202 and so on. तो ये क्या है? अप्लायंस वाइज है, राइट? अप्लायंस वाइज का टोटल फॉर ऑल दीज 5 फैमिली. सो उसी ऑर्डर में एक बार चेक कर लेते हैं. AC, fan, bulb, washing machine, refrigerator and TV. Fair enough. So this total is what? 4398. This is 2202, this is 491, this is 954,
this is 1310 and this total is 645. राइट क्या हम कोई वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? हमेशा दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. लेट्स नॉट क्विकली जंप इनटू टेकिंग वेरिएबल्स. थोड़ा पहले सारे कंडीशंस पढ़ लेते हैं, देन विल स्टार्ट टेकिंग वेरिएबल्स फॉर द मिसिंग इन्फॉर्मेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो डन. देन the electricity board charges the bill at 3 per unit for the first 200 units and thereafter rupees 5 per unit. ठीक है, ये तो चार्ज दिया हुआ है. Each family gets electricity bill for each appliance separately and has to pay the bill equal to the sum of the bills for each appliances used by them. तो ये वाला जो यूनिट वाला पार्ट है ना, 3 per unit for the first 200 units and thereafter 5 per unit, तो this bill is for each appliance separately. तो टोटल बिल में हम ये वाला पार्ट नहीं लगाएंगे. जैसे ये 3 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 200 यूनिट्स ये अलग अलग अप्लाइंसेज में अप्लाई होगा. राइट, दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंबाइन कर दोगे. तो टीवी पे अलग से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एसी पे आपको अलग से ये 3 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 200 यूनिट्स निकालना पड़ेगा और रिमेनिंग पे फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग का चार्ज निकाल सकते हो. दिस विल बी अप्लाइड टू फैन एज वेल, टू बल्ब एज वेल एंड सो ऑन. ठीक है, ये चीज़ आप इस पे नहीं करोगे, टोटल वाले यूनिट्स पे नहीं करोगे कि सिर्फ आपको पहले 200 यूनिट पे 3 इसमें से मिलेगा तो बचा हुआ आपका जैसे 200 माइनस कर देंगे 1430 पे फिर पूरा आपका 5 पर यूनिट के हिसाब से लगेगा. ऐसे नहीं होने वाला है. दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस. नाउ तो ये पार्ट तो ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बस ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट हमारे लिए. बाकी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो डन. द फाइनल पार्ट, द सम ऑफ P of F5 for AC, that means this value, and P of F3 of refrigerator, F3 का ये refrigerator, this part, ये दोनों का एडिशन कितना है 971. सो आई कैन गो अहेड एंड राइट, जैसे ये A है और ये आपका B है, तो एक इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया कि A प्लस B कितना होना चाहिए आपका 971. द बिल पेड बाई F4 फॉर फैन, F4 फॉर फैन, दिस वैल्यू, and washing machine together was 1868. Washing machine is this value, remaining values is 1868. Now if I say, let's say यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो let's say ये दोनों C and D हमने प्लग इन करा. सो एक रिलेशन तो आपको पता है कि C प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी. राइट, C प्लस डी क्या कर सकते हैं हम, 1630 में से सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स जस्ट क्विकली डू दैट. सो 1630 माइनस ऑफ 113, 113 minus 160 minus 72 and minus of 781, 504. ये आया आपका कितना 504. Now if I can make another equation involving these two variables, that is C and D, I can go ahead and figure out the values of C and D individually, uniquely. वो कैसे निकलेगा, यही वाली इंफॉर्मेशन से, ये जो आपका बिल पे करा है 1868. नाउ आपका ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, 3 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 200 यूनिट्स एंड देयर आफ्टर 5 पर यूनिट. तो आपको ना ये सोचना पड़ेगा कि ये तो देखो C and D की वैल्यूज आपको पता तो है नहीं, 504 लेकिन टोटल है. नो, क्या दोनों ही केस में आपका 200 यूनिट क्रॉस हुआ होगा? क्योंकि दोनों ही केस में अगर आपका 200 यूनिट क्रॉस हुआ होगा तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी. तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा आपको, क्या ऐसा हुआ है कि C and D दोनों में 200 यूनिट क्रॉस हुआ है? क्योंकि हो सकता है, बिकॉज टोटल एडिशन आपका इनका 504 आ रहा है. नाउ मेरा इसमें देखो पॉइंट ये है, ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, अगर दोनों में 200 यूनिट क्रॉस हुआ होता, ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन समझो तो दोनों ही केस में पहले 200 यूनिट पे 3 इंटू 200 600 आएगा, दूसरे में भी 3 इंटू 200 600 आएगा. नंबर इज एंडिंग इन अ जीरो. आई होप दिस इज क्लियर. नंबर इज एंडिंग इन अ जीरो. उसके बाद जो भी आपका चार्ज बचे, मतलब जो भी यूनिट्स बचेगा दोनों केस में, उसमें नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों ही केस में 5 से मल्टीप्लाई होगा. तो 5 से अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, या तो 0 से एंड होगी या तो 5 से एंड होगी. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दोनों ही केस में 200 यूनिट क्रॉस हुआ होगा ना, तो आपका जो टोटल बिल आएगा हमेशा, वो हमेशा या तो 0 से एंड होगा या तो 5 से एंड होगा. राइट, दिस इज अ क्रूशियल पार्ट टू दिस. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अगर ये पार्ट नहीं क्लियर है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है. आप सोच के देखना, अगर दोनों में ही 200 यूनिट प्लस समथिंग है, इसमें भी 200 यूनिट प्लस 200 प्लस समथिंग है, तो इस 200 पे तो आपको एकदम क्लियर कट चार्ज है, इंटू 3 होता है,
इंटू 3 होता है, तो इसका भी 600 बन जाता है, इसका भी 600 बन जाता है। नाउ 200 के बियॉन्ड अब कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो, यहाँ पे x हो, यहाँ पे y हो, एक्स्ट्रा यूनिट्स, बट इसमें क्या 5 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू समथिंग या तो नंबर 0 से एंड होगा या तो 5 से एंड होगा। सिमिलरली 5 इंटू समथिंग या तो नंबर 0 से एंड होगा या तो 5 से होगा। जो टोटल बिल आएगा आपका हमेशा, जो कंबाइन करके जो टोटल बिल बनना चाहिए वो या तो 0 से एंड होना चाहिए या तो 5 से एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो वो तो 1868 है ना, 5 से एंड नहीं हो रहा। दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस कि दोनों ही अप्लायंस में आपका 200 यूनिट यूज हुआ हो ऐसा नहीं है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। दोनों ही अप्लायंस में आपका 200 यूनिट पूरा कंज्यूम हो गया हो, ये नहीं होगा। और दोनों में नहीं हुआ ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों में आपका 200 यूनिट भी यूज नहीं हुआ ना, तो मैक्स टू मैक्स आपका ना टोटल बिल, जैसे ऑब्वियसली 3 इंटू 200 और 3 इंटू 200 600 प्लस 600 1200 ही आता, 1200 ही उससे नीचे आता अगर दोनों में कंज्यूम नहीं होता। बट 1868 गया है, मतलब किसी एक में तो 200 यूनिट्स कंज्यूम हुआ होगा, तो किसी एक में 200 यूनिट्स के ऊपर गया होगा और किसी एक में 200 यूनिट्स के नीचे गया होगा। तो लेट्स से, अब मुझे आइडिया नहीं कि किस में क्या गया है सी एंड डी, वो हम ऑर्डर बाद में देख लेंगे, बट लेट्स से सी एंड डी दो वैल्यूज आपकी हैं। अब इसमें अगर मैं नोटिस करूं, मान लो सी वाले में 200 यूनिट्स कंज्यूम हो गया है, तो सी वाले में दो पार्ट से चार्ज निकलेगा आपका, एक तो पहले 200 यूनिट्स और उसके बाद C माइनस 200 यूनिट्स। राइट, पहले 200 यूनिट पे कितना चार्ज लगने वाला है, लेट्स से 3 यूनिट लगने वाला है, राइट, और इस C माइनस 200 पे कितना यूनिट लगने वाला है, 5 यूनिट लगने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस कुड हैव बीन डन फॉर D एज वेल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, वो बस ऑर्डर की बात है, वो तो हमने वेरिएबल लिख दिया है, वो हम दो वैल्यूज निकालना चाहते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे वो क्या वैल्यूज आएंगी। ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका C वाले पार्ट से कितना हो जाएगा, 600, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5C माइनस ऑफ 1000, और D वाले में हमने क्या बोला, ये 200 से पूरा कम कंज्यूम हुआ होगा, राइट, 200 भी नहीं हो पाया होगा, 200 से कम कंज्यूम हुआ होगा, तो 200 से अगर कम कंज्यूम हुआ है तो इसका मतलब उस पर 3 पर यूनिट ही चार्ज लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3D। एंड ऑल दिस एड्स अप टू व्हाट, दिस नंबर 1868, 1868। राइट, नाउ आई कैन गो अहेड एंड सिंप्लीफाई दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 5C प्लस ऑफ 3D, तो 5C प्लस ऑफ 3D, 600 माइनस 1000 दैट इज माइनस 400 इधर जाएगा, 400 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2268, सो 2268, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इसी चीज़ को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, C प्लस D इज 504, राइट, तो कोई भी एक वेरिएबल उठा लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे 5C बना लेते हैं, तो ये इसको बना देंगे 5C प्लस 5D, एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज 20 एंड 5 4 20, तो 2020, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस 2520, बैड, दिस इज 2520, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5C विल गेट कैंसल्ड आउट, 5D माइनस 3D विल सिंपली बी 2D, 2520 माइनस 2268, तो कितने का डिफरेंस बनेगा, 2268। अगर इसको मैं 300 पे लेके जाऊंगा तो 32 ऐड करना पड़ेगा, और 300 के बाद 220 और है, 220 और, सो 252, सो 252 इज द वैल्यू ऑफ 2D, तो D का मतलब कितना आ जाएगा, 126, सो दिस D इज 126, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा C आ जाएगा 504 माइनस 126 कितना बनेगा यार, ये 14 माइनस 6, दिस वुड बी 8, एंड 14 9 9 2 is 7, एंड दिस इज 378। तो C एंड D, अब किसमें क्या वो 200 वाला पार्ट था वो मुझे नहीं पता, वो C में भी हो सकता था, D में भी हो सकता था, कैलकुलेट सेम तरीके से हुआ होता, बट these two unknown values are 126 and 378 in any order। अब ये ऑर्डर कैसे डिसाइड करें, इट कुड बी डिफरेंट, बिकॉज वो पूरा ऑर्डर चेंज करने से बाकी सिनेरियोस भी चेंज होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसमें ये चेक करूँगा, मेरे को देखो यहाँ पे C में छोटी बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं, बिकॉज दिस टोटल इज़ वेरी बिग, दिस टोटल इज 2202, बट यहाँ का टोटल नंबर छोटा दिख रहा है मेरे को, कितना दिख रहा है, 954 में 169 235 144 ऑलरेडी है। क्या मेरा D
378 ले सकता है, नहीं ले सकता. आई विल गो एड एंड चेक फॉर दिस. तो लेट्स से डी में 169, सो दिस इज 169 प्लस 235 प्लस, लेट से मैंने डी को यहाँ पे बड़ा नंबर एक बार चेक करा, दैट इज 378, सो दिस इज 378 एंड प्लस 144. अब अगर आप चेक करोगे ना इसको 144 ऐड करके, दिस इज 926. ठीक है, डी अगर मैंने यहाँ पे 378 लिया, राइट 926, और इसका लेकिन टोटल कितना आने वाला है 954. तो क्या मेरी ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 926 है, 926 के बाद 954, सो लेट्स से 954, ये डिफरेंस कितना आएगा 28 का. दैट मीन्स दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये 28 है. नाउ अगर ये 28 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी निकलेगी. इस वैल्यू को अगर निकाल के चेक करें, थोड़ा आपको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स से इफ दिस इज 28, तो 2700 माइनस ऑफ 470 माइनस ऑफ 28 माइनस 536 माइनस 536 माइनस 1125 541. सो ये वाली वैल्यू आपकी 541 आ गई. अब यहाँ प्रॉब्लम है आपको. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से 28 अगर आप रख रहे हो तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी 541, बट इस पूरे कॉलम का ये एडिशन आपका 491 है. दैट मीन्स आई कैन से कि यहाँ पे जो हमने बेसिक अजम्पशन लिया कि ये जो डी था ये आपका 378 हो ही नहीं सकता, तो उससे ये वैल्यू भी नहीं आ सकती और यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. दैट मीन्स आई कैन गो हेड एंड से कि ये डी की जगह आपका 126 आएगा और सी में कितना आएगा 378. तो ये सारी वैल्यूज हटाते हैं, यहाँ पे अब हम एक्चुअल वैल्यू फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 126 एंड ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 378. अब इसके थ्रू मैं ये वैल्यू फिगर आउट कर लूँगा. ठीक है, तो लेट्स अगेन क्विकली यूज आवर कैलकुलेटर. दीज आर द प्रॉब्लम्स जहाँ पे कैलकुलेटर कम्स वेरी हैंडी, राइट. These are calculation intensive. So 954 minus 144 minus 126 minus 235 minus 169. तो ये कितना आ जाएगा 280, राइट. वी हैव फिगर्ड दिस वैल्यू आउट. तो ये हो गया हमारा 280. राइट नाउ अब अगली वैल्यू कौन सी हम यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं. इसमें हम सबसे पहले अब ये फैन वाला वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इसमें हर चीज़ पता है एक्सेप्ट फॉर दिस. तो यही आपको हमेशा अब एक एक चीज़ मिलती जाएगी और ये पूरा फिल होता जाएगा. लेट्स अगेन कैलकुलेट दिस. राइट, सो 2202 था, 2202 माइनस ऑफ 319 this cursor is going back, minus 319 minus of 378 minus of 570 minus 536. So 399 is this value. ये 399 आ गया, राइट. अब ये 399 के बाद हम कौन सी वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ मिसिंग है, यहाँ पे भी ये दो वैल्यूज़ मिसिंग है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ मिसिंग है, और यहाँ पे तो पूरा निकल गया, और यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग है. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं करा है, दैट इज a + b इज 971. ठीक है, अब क्या है ना, आप a और b का एडिशन देख रहे हो, तो ये जो रिलेशन दिया है इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, a को b के टर्म में लिख सकता हूँ या b को a के टर्म में लिख सकता हूँ. एनी हाउ ये मेरा कनेक्टिंग वैल्यू बन सकता है, बिकॉज इसमें देखो तो ये वाली मिसिंग है और इसमें देखो तो ये वाली वैल्यू मिसिंग है. तो अगर मैं इसके अराउंड सोचना स्टार्ट करूँ ना, तो बिकॉज मेरे पास a + b जैसा है, तो मेरे पास a - b जैसा भी कुछ रिलेशन आ जाएगा. तो किसी के थ्रू भी करना हम स्टार्ट कर सकते हैं. लेट से मैंने इसी कॉलम को देखा, ये वाला 23 एंड 50 इसका पूरे का सम है. तो अगर मैं यहाँ से लेट से
2350, सो दिस इज 2350, 2350 में से सारी वैल्यूज हटाते हैं तो -120 माइनस ऑफ 235 माइनस ऑफ 96 माइनस ऑफ 570, ये आई 1329, राइट। अब 1329 किसका किसका सम होगा, इसका सम बी और इसका, तो इन दोनों का सम अगर 1329 है तो मैं इस वाली वैल्यू को 1329 माइनस बी लिख सकता हूँ, राइट। आई कैन राइट दिस एज 1329 माइनस ऑफ बी, 1329 माइनस बी। अब इधर से भी अगर आप देखो इन सब का एडिशन करेंगे तो 4398 आना चाहिए, तो इन सब का एडिशन में आपको समझ में आ रहा होगा a माइनस बी मिल जाएगा आपको। और बिकॉज आपको a प्लस बी 971 मिला हुआ है तो मेरा a माइनस बी के साथ आपका सॉल्व होकर a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज दे देगा। अगेन लेट्स डू दिस, तो 870 या बेसिकली 4398 में से माइनस कर रहे हैं ना, 4398 माइनस ऑफ 781 माइनस ऑफ 1329 माइनस 1329 माइनस 1125 माइनस 870 कितना आया 293, मतलब a माइनस बी की वैल्यू बिकम्स 293, सो a माइनस बी इज 293। अब मैं दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर दूंगा, कैसे ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2a की वैल्यू, सो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 293 प्लस 971, सो 314,976,1 दैट इज 1264, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 632, तो a की वैल्यू अगर 632 आ गई तो b की वैल्यू आपकी 632 माइनस ऑफ 293 आ जाएगी 293, तो b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी आ जाएगी 12 एंड 3, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, लेट्स क्विकली सबट्रैक्ट दिस, सो a की वैल्यू 632 एंड 293, 632 माइनस ऑफ 293 339, सो b की भी वैल्यू आ गई आपकी 339, right? So we can go ahead and figure out these values. So this is 632, this b is 339, एंड फिर ये वैल्यूज आ जाएगी 1329 माइनस ऑफ b, 1329 माइनस ऑफ b, सो 1329 माइनस ऑफ b, दैट इज 339, दैट इज 990, राइट। सो काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप रेफ्रिजरेटर निकाल सकते हो, आप यहाँ से फिर टीवी निकाल सकते हो, टीवी फिर माइनस करके ये निकाल सकते हो और फिर आपका ये निकल जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये निकल जाएगा। सो वी कैन एक्चुअली फिगर आउट ऑल द वैल्यूज़, वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव। लेट्स क्विकली डू ऑल ऑफ दीज। सो रेफ्रिजरेटर का मिसिंग निकालता हूँ सबसे पहले, तो दिस इज 1310, दिस इज 1310 माइनस ऑफ 152 माइनस ऑफ 160 minus of 339 minus of 470, this would give me 189, so refrigerator is 189। then मैं तुरंत से फिर 1800 में से सब कुछ माइनस कर दूंगा, तो 1800 माइनस ऑफ 189 माइनस ऑफ 169 माइनस ऑफ 80 माइनस 399 माइनस 870, दिस वुड बी 93, सो ये हो गया आपका 93। देन टीवी वाला टोटल में से माइनस कर देते हैं, सो 645 माइनस 145 माइनस 113 माइनस 120 माइनस 93,
तो 174 इज दिस वैल्यू, और अब 2700 को उठा लेते हैं. सो 2700 माइनस 174 माइनस 470 माइनस 280 माइनस 536 and minus 1125. So this would be 115. So ये आ गई 115, and let's finally figure out the last value. So 491. So 491 minus of 72 minus 96 minus 115 minus of 80. And that gives us the final value, that is 128. Right? So I hope all of this calculation is clear to each one of you. Okay, now we can simply go ahead and figure out all the problems. Let's just erase this. Okay, let's take a look at the problems. So I want you to go ahead and figure out all the problems. Right, this video will become very lengthy just because of this. So we have figured out all the values. The problems are very straightforward, right? You can simply go ahead. So that is a little exercise for you. आप calculate करो and comments में मेरे को answers पूरे ABCD first, second, third, fourth के answers लिख के भेजो. ठीक है, I'll finally put all the correct answers. This should be pretty straightforward. So make that an exercise. So I hope this set is clear to each one of you. बहुत calculative है, but I would not say this is a difficult set, because ultimately we have this calculator वाला part ना, तो calculator के तो we can easily go ahead and solve. There were a few crucial points to this set, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको दिया था उसके थ्रू ये आपका CND फिगर आउट करना, उसमें भी एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर आपको चेक करना इंपॉर्टेंट था. राइट, दैट वाज वन क्रूशियल पार्ट. द सेकेंड क्रूशियल पार्ट वाज इस रिलेशन को यूज करना. यहाँ पे ये जो 632 और 339 के जो ए एंड बी जिस पर हमने लिखे थे, उस रिलेशन को यूज करके इधर की वैल्यूज 990 को फिगर आउट करना, बिकॉज वंस दैट वाज टेकन केयर ऑफ तो फिर बाकी वैल्यूज फिर आपकी फिट होती गई. Right, every time either one value in a row was missing or one value in a column was missing after we took care of these 2 pointers. Right, so I hope you understood this. I want the answers in the comments. ठीक है, thank you, have a good day.